So, hello everyone. This is again the next series of talks which we'll be doing with Thaina and Vyaktit Foundation. It's a rhythm of nature. We are planning to have almost two talks every month on different aspects of nature. As you know, Thaina has been working in space of natural farming, enabling farmers with natural how they can become without they can grow without chemicals and all, and then we market their product. At the same time, we have been involved in various projects, and we are lucky to have Naveen Jain, who is a BE mechanical and MBA and PMP certified professional, and has worked in many corporates, including L&T, John Deere, GE, Volvo, Eicher. And one unique thing which is there with Naveen and his family is that they have been practicing Agnihotra from last 38 years. And I was intrigued when Naveen ji talked about that, how Agnihotra has impacted their life and how, why, and we all should be doing this. And that's what how this podcast came into picture. And we will be discussing, and knowing more from Naveen and Shalini ji. Shalini ji is his wife, sitting next to him, and we will be learning how just with 5 to 7 minutes of practice we can actually be a contributor towards the the pollution which we see around. So I would request Naveen ji to be tell us a little bit about both Naveen ji and Shalini ji, and then maybe we'll begin with our conversation. Sure. Thank you, संचित. ओके, सो बेसिकली सभी को नमस्ते, नमस्कार। हम लोग एक्चुअली जयपुर से हैं, हमारी फैमिली राजस्थान जयपुर से है। अभी आजकल हम लोग बेंगलोर में हैं। मैं ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर से डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जॉब किया, जैसा भी बताया संचित ने। मैंने यूएसए, यूरोप एंड चाइना भी ट्रैवल किया है मेरे जॉब के माध्यम से। तो बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने खुद ने एमबीए किया है और मैंने पीएमपी भी किया है। और जो प्रैक्टिस की हम लोग बात करें अग्निहोत्रा की, वो लास्ट 38 ईयर से हमारे घर में हो रहा है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ में मेरी मेरी वाइफ भी है, शालिनी जी। Namaste. Yeah. Hello. Yeah, I'm Shalini, and I have done engineering in agriculture. After that, I completed MBA even. Worked for 7 years in different organizations as a design engineer. Right now, not professionally, I'm not working, and I'm a housewife only. But yeah, we are propagating. We are trying to means inform others even that how Agnihotra is impacting others, how it is impacting our life, and just we are trying for that only. Yeah. Mhm. That's amazing, Naveen ji, Shalini ji, and it's a pleasure to host you today. And Thank you. अभी सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, मतलब कि अग्निहोत्र होता क्या है। मुझे थोड़ा बहुत पता है बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड एंड इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक कृषि जो हम करते हैं। तो करेक्ट। वो तो हमारे मेंटर्स ने बोला था कि अग्निहोत्र रोज करना है, और मुझे तो यही पता था कि वो किस कृषि में काम आता है। तो आपके पर्सपेक्टिव से जानते हैं आज कि अग्निहोत्र क्या है, थोड़ा इस ओके, तो बता। बेसिकली अग्निहोत्र जो है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द वैदिक साइंस। It is a part of Yajurveda. It's a scientific process to purify the environment. आज हम देखें, आज जो भी हमारा environment है, चाहे से उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, there are a lot of pollutions are there actually in our environment. So basically, we can purify the environment with the help of Agnihotra. Agnihotra क्या है कि holistic approach है। That means you can purify the air, water, and the food grain actually. So if you say, as a human being, what we need is pure water, pure air, and pure food grain. If we get these as a pure thing, we can remain healthy in terms of physical, in terms of mental also. अभी अभी क्या हो रहा है कि आज अपन देखें तो बहुत सारे टेंशन है, नेगेटिविटी है। तो अग्निहोत्र एक छोटा सा प्रोसेस है, इसे करने के लिए 5 से 7 मिनट चाहिए सुबह, और 5 to 7 मिनट्स चाहिए अपने को शाम को करने के लिए। लेकिन इसकी जो गैसेस बनती है, उससे एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। आप देखिए, अग्निहोत्र करने से 4 तरह की गैसेस बनती है: एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेलेक्टॉन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेलिन ऑक्साइड। जब ये गैसेस बनती है तो वातावरण के अंदर जगह के मिक्स होता है, तो वातावरण को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड वाइड, आज आप देखिए अग्निहोत्र, आप सर्च करें गूगल पर, ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज है जहां पर अग्निहोत्र का परफॉर्मेंस किया जाता है इन द सेम वे विच विल डिस्कस इन द अनदर हाफ एन आवर 40 मिनट्स एक्चुअली।
So any caste, any creed, any gender can perform agnihotra in their life to purify the environment. Simple process, but the result is very powerful actually. आज अपन देखें, यदि हम योगा करते हैं या if we go for meditation, if we go for a morning or evening walk, the person who does the activity, they get the benefit, right? This is how the things are. But when you do agnihotra in the home, irrespective of the family members, whether they participate in the agnihotra or do not participate in the Agnihotra, they equal get the benefit actually. So अग्निहोत्रा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 5-7 मिनट चाहिए सुबह करने के लिए, शाम करने के लिए। वातावरण को शुद्ध करता है और एक अच्छी हेल्दी लाइफ हमें देता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है ओवर द लास्ट 38 years और बहुत सिंपल प्रोसेस है। Amazing, Naveen ji. I think like that is so relevant if we talk about today's time, right? We are surrounded by air pollution, we are surrounded by water pollution, and I think land is also what is degraded. तो थोड़ा सा आप इसके जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब हाँ, अभी छोटा मोटा तो समझ में आया कि हाँ अग्निहोत्र का इम्पैक्ट है, ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है वो थोड़ा आप बताइए। करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा अपन समझते हैं करंट सिनारियो क्या है। तो करंट सिनारियो में आप देखें, आजकल हम लोगों को टेंशन है, नेगेटिविटी है, एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हमारे अंदर आ रहा है एक्चुअली। वो क्यों हो रहा है कि हम जो कुछ भी इनटेक करते हैं, चाहे से वो एयर हो, वाटर हो या फूड ग्रेन हो, एवरीथिंग इज इम्प्योर, नथिंग इज प्योर एक्चुअली। तो हम बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन एक्चुअली। इसीलिए आज नेगेटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत तरह की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ आज के सिनारियो को ऑलमोस्ट एंशियंट टाइम से, या 100 years अगो टाइम, या 250 years अगो टाइम, पीपल यूज टू बी मोर फिट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ मेंटल, क्योंकि उन लोगों को मिलता था प्योर एयर। तो एक्चुअली, और यदि मान लो यदि एक घर में ही 10 लोग होंगे, आपको केवल 2-3 लोग ही बीमार मिलेंगे, 1-2 लोग मिलेंगे बीमार अदर। पर अभी आजकल क्या हो रहा है, आप देखें अपने नियर बाय में भी, एक घर यदि होगा, 3-4 लोग घर में होंगे, किसी को डायबिटिक है, किसी को ब्लड प्रेशर है। ये सब कुछ हो रहा है आज एक्चुअली। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आज मेरा वातावरण है, वो एक तरह से उसमें इम्प्योरी, मतलब वो मतलब प्योर नहीं है, एंड दिस इज इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ। आई गिव एन एग्जाम्पल टू यू कि जैसे दिल्ली है, आप देखें दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दिल्ली इज आवर कैपिटल एज वी नो, उसका जो एयर पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। इसीलिए आज देखें वहां पर कई बार स्कूल शट डाउन हो जाती है, कई बार हम लोग ऑड इवन का रूल्स फॉलो करते हैं वहां पर व्हीकल्स के अंदर। क्या होता है, साइंस क्या है कि एक्यूआई जिसे बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच शोज द प्योरिटी ऑफ द एयर। तो दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल ऑलमोस्ट 400 से 500 नंबर, यानी ब्रीथ करना बहुत डिफिकल्ट है। वहां ऐसी स्टडीज है कि 20 लाख से ज्यादा बच्चों के लंग्स अभी से खराब हो चुके हैं, और वो बच्चे अभी से ही क्या नाम से मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है उनके अंदर, आप सोचें आफ्टर 10 years 15 years व्हेन दे गो इन देयर प्रोफेशनल और देयर पर्सनल लाइफ, हाउ देयर बॉडी विल बिहेव। बिकॉज हम जानते हैं कि मेडिसिन जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें आपके साइड इफेक्ट होंगे, उसमें केमिकल्स होंगे। तो बेसिकली अग्निहोत्रा एक होलिस्टिक अप्रोच है। हमने सबने सुना है कि देर आर 7 हैप्पीनेसेस। तो पहला सुख क्या होता है? पहला सुख होता है निरोगी काया। आप जो अभी काम कर रहे हैं नेचर पर और फार्मिंग पर, तो पहला सुख क्या है? बेसिकली पहला सुख होगा निरोगी काया, यानी यदि हम लोग फिजिकली और मेंटली यदि हेल्दी रहते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, अपने को जो फिजिकल मेंटली हेल्दी रहेंगे तो क्या होगा, आप अपना जो मनी अर्न करते हैं आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप यू विल नॉट वेस्ट योर मनी और द टाइम और द एनर्जी ऑन द डॉक्टर्स। आपकी जो मेडिसिन होगी वो बहुत कम हो जाएगी। आप देखिए हमारे घर में जो खर्चा मेडिसिन पर है, वो ऑलमोस्ट 100-200 रुपीज ही है। 100-200 से ज्यादा हमारा खर्चा ही नहीं है। लेकिन आप देखें और जो फैमिली होती है नियर बाई या अपने नेबर्स में, किसी का खर्चा 2,000 है, किसी का खर्चा 3,000 रुपए है। तो वो सब चीजें आपकी बच जाती है अग्निहोत्र करने से एक्चुअली ओवर द ईयर्स, क्योंकि हम लोग लास्ट 40 years से कर रहे हैं। तो ओवर द टाइम में वो चीजें बच जाती है और आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है अग्निहोत्र करने का। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कोरोना टाइम के अंदर हम सब जानते हैं ना कि कोरोना टाइम आया था हम लोगों का, राइट? तो कोरोना टाइम के अंदर आपकी बहुत सारे वेव्स थे, अल्फा बीटा सब तरह के वेव्स आए थे। हमारे घर के अंदर कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं था। कैन यू बिलीव इट? यस। बिकॉज हम लोग अग्निहोत्र वन करते हैं फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, हमारे घर में कोई कोरोना पेशेंट नहीं था। और हम लोगों ने उस अग्निहोत्र को बहुत लोगों को ऑनलाइन भी बताया कि सब लोग उसका बेनिफिट लें, और बहुत लोगों ने उसे स्टार्ट भी किया। तो ये इसका सबसे सबसे बड़ा इसका फायदा है अग्निहोत्र करने का। 5-7 मिनट सुबह चाहिए, 5-7 मिनट शाम को चाहिए, लेकिन फायदा सबको मिलता है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट अग्निहोत्र करने का। That is amazing, Naveen ji. If you are talking about that, the way you
were not contaminated with coronavirus within the home with just the practice of Agnihotra. I think that is something which everyone should learn and actually perform it, right? तो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि ये क्या ऐसा करता है अग्निहोत्र कि जो वेव्स बनती हैं या जो भी हाँ, अरोमा बनता है उससे, लाइक व्हाट इज एक्चुअली द साइंस बिहाइंड दिस? करेक्ट। तो साइंस को समझते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसे करते कैसे हैं। साइंस भी मैं साथ में कवर करूंगा इसके अंदर। तो क्या होता है, आप देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं उसके हम जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं, हर हर चीज करने के नियम होते हैं। दे शुड बी डिसिप्लिन वाइल यू वर्क ऑन द एनी ऑफ द स्टेप, देन ओनली कैन गेट द सक्सेस एक्चुअली। तो अग्निहोत्र करने के सिंपल से 5 नियम है। हम जब भी अग्निहोत्र करेंगे उसके 5 नियम है, और उसके पीछे पूरा साइंस है जो हम लोग बात करते हैं साथ में। तो पहला नियम क्या बोलता है, आप जब भी हवन करेंगे वो आप सूर्योदय और सूर्यास्त पर करेंगे। हम जहां भी रहते हैं, चाहे सब दिल्ली में रहें, चाहे से मैं बैंगलोर में हूँ, चाहे से कोई कोलकाता में है, हर एक का सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम अलग अलग होता है, बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड लेटरल डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्चुअली, राइट, एज पर अवर ज्योग्राफी आल्सो। तो क्या होता है सूर्योदय और सूर्यास्त पे क्या होता है, बेसिकली आपके दोनों नाड़ी सिस्टम जो होते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो होता है, दे नेवर वर्क टुगेदर एक्चुअली, इट गेट्स चेंज ऑन हार बेसिस, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट नोस्ट्रल। लेकिन जब मैं हवन करता हूँ सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त पर, आपके दोनों नाड़ी सिस्टम एक साथ चलता है एक्चुअली, दिस इज साइंस। तो आपकी बोथ आर वर्किंग टुगेदर, दैट मीन्स यू कैन इनहेल लॉट ऑफ एनर्जी while डूइंग अग्निहोत्रा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या होता है, इस टाइम को बोलते क्या है, इस टाइम को बोलते हैं सर्केडियन रिदम एक्चुअली। तो मेरे नेचर में रिदम बनता है एक्चुअली, एंड यू आर ट्राइंग टू सिंक योर बॉडी विद द नेचर एक्चुअली। दैट्स वेयर यू विल गेट द वेरी गुड एडवांटेज ऑन द हेल्थ। हम देखें, आज नेचर सब कुछ लेते हैं, अपना सनलाइट, फूड ग्रेन, एवरीथिंग आर टेकिंग फ्रॉम नेचर, बट वट एवर ये तो सिंपली ए पॉल्यूशन। इसीलिए हमें वो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या बताया, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसका पहला प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल से करने के लिए आप देखें, इसे करने के लिए इसे डेफिनेट शेप के पॉट में, ये आप देखिएगा, आई थिंक यू कैन नॉट सी इट, ओके, आई विल जस्ट शो यू। ओके, सो लेट मी जस्ट, ओके। सो बेसिकली इसे करने के सेकंड नियम ये क्या है, इसमें पिरामिड स्ट्रक्चर का आप देखें, पिरामिड स्ट्रक्चर एक्चुअली। तो ये सेकंड नियम क्या है, इसे जब भी हम करते हैं, इसको पिरामिड स्ट्रक्चर के पॉट में करते हैं। ये बना हुआ कॉपर का है, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है, आप देखें इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई कुंडे नहीं है इसके अंदर। और इसका डायमेंशन फिक्स है, जैसे बेस 5.25 सेंटीमीटर है, हाइट 6.5 सेंटीमीटर है, ऊपर से विड्थ जो है इसका क्या नाम से 14.5 सेंटीमीटर है, 51 डिग्रीज का एंगल है। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड कंटेन्स एनर्जी। आपने अगर सुना हो पिरामिड जो होता है, आज बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं पिरामिड के ऊपर, उसमें एनर्जी होती है, उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कोई भी चीज को सड़ने गलने से रोकता है। आपने उल्टा किया हवन करने के लिए, तो वो एनर्जी गेट डिसेंट्रलाइज टू एवरी लिविंग बीइंग। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कच्चा दूध लिया, दूध को मैं यदि गर्म नहीं करता और उसे ढक दूंगा इस पिरामिड स्ट्रक्चर से, तो आपका दूध सुबह शाम तक वो दूध नहीं फटेगा। इट हैज सो मच ऑफ पावर एक्चुअली। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है, कि हम जब भी करेंगे इसे इस पिरामिड शेप के पॉट में करेंगे, सब देखिए डायमेंशन फिक्स है, ज्योमेट्री फिक्स है, वो उससे करते हैं। अब थर्ड प्रिंसिपल क्या है, ऐसा करने के लिए काउडंग केक्स हम यूज करते हैं। ये आप देखिए काउडंग केक्स हमारे पास। मैं पहले वहां ले चलता हूँ जहां अभी हवन होने वाला है। आई गेस टाइम भी हो गया है हाँ हाँ, सनसेट। इसीलिए पहले हम वहां वहां चलते हैं, एक वो बार वहीं पर हम लोग कवर करते हैं इसका। जस्ट एक मिनट। just for everyone, what Naveen ji was talking about is अग्निहोत्र का टाइमिंग फिक्स है। इट इज सनराइज एंड सेट। तो अभी बैंगलोर में इट इज 6:23 6:25 के बीच का टाइम, सो वी विल बी एक्चुअली परफॉर्मिंग अग्निहोत्र and then we'll come back on explaining how it is being done and how we can actually do it on a daily basis and contribute towards या the सो purification prayer and all. So या आई थिंक या सामने। you can remove that background. That अच्छा, wish. With, you can join with my mobile. Yeah. सो अग्निहोत्र करने के आप मेरा वाला मोबाइल जो है उस पे कनेक्ट करेंगे? जस्ट यस, वो आपका वीडियो ऑन कर लीजिए आप उस पे। हाँ जी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
आपको दिखाई दे रहा है अभी? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हेलो, या इज हाँ इट जी, विजिबल? यस यस, इट इज विजिबल। इट इज विजिबल। या फाइन। सो देखिए, अग्निहोत्र करने की जैसे बताया अभी 5 सिंपल से प्रिंसिपल होते हैं। तो अग्निहोत्र करने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि उसको निश्चित समय पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे किया जाता है। तो निश्चित समय पर उसमें हम करते क्या है, निश्चित आकार के पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में हम गाय के कंडों के छोटे छोटे टुकड़े अरेंज करते हैं। तो हमने सेंटर में एक टुकड़ा अरेंज किया और 4 कॉर्नर्स में हम 4 टुकड़े इस तरीके से, 4 पीसेस हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं रैंडमली। तो इस तरीके से हमने एक टुकड़ा लिया और हमने 4 पीसेस अरेंज कर दिए। आज बैंगलोर के अंदर जो सनसेट का टाइम है वो 6:28 है। अभी 6:22 हो चुका है। तो करीब करीब 6:28 वो टाइम है जब हमें आहुति देनी होती है। तो करीब हम उससे 5-6 मिनट पहले हम अग्नि तैयार करते हैं। तो हमने उसको किसी भी ऐसे चीज से हम जलाते हैं जो कि नेचुरल हो, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट ना करें। तो हम कैंफर यूज कर सकते हैं या पेड़ों से निकलने वाला कुंदरुन गोंद यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको जला लेते हैं और अपनी तिल्ली जो है उसको बाहर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें भी केमिकल्स होते हैं और हमें जितना भी प्योर हो उतना प्योरली अरेंज करना होता है। तो इसलिए हमने तिल्ली को बाहर डाला और हम कंडों को क्रॉस में अरेंज करते हैं। इस तरीके से हम कंडों को क्रॉस में अरेंज करते हैं। हम इसमें कितनी भी लेयर्स ले सकते हैं कंडों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हम चाहें अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम कंडों को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 2-3 लेयर लिया कंडों का और इसको क्रॉस में अरेंज करते हैं, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और स्मोक कम से कम क्रिएट हो। और हम टॉप के ऊपर एक हम कंडे का अरेंज कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर फ्लेम तैयार हो सके। तो इस तरीके से हमने अरेंज किया और हमने, ये हमारी तैयारी हो गई है। ये तैयारी करनी होती है जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, भी समय हम अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, उससे करीब 5 से 6 मिनट पहले हमें ये तैयारी करनी होती है। अब ये तैयारी करने के बाद हम अपनी आहुति की तैयारी करते हैं। तो आहुति जो दी जाती है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो ये है कि हमें 2 पिंच फुल ऑफ राइस लेना होता है। तो करीब करीब ये 1 पिंच फुल ऑफ राइस, ये करीब करीब 2 पिंच फुल ऑफ राइस, मतलब रेंडमली हमें राइस लेना है। ऑलमोस्ट 70 to 80 ग्रेन्स ऑफ राइस, काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली 2 पिंच फुल ऑफ राइस लेना है। और काउस घी, जो गाय का घी होता है, वो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ काउस घी, इस तरीके से हम 2-3 बूंद गाय का घी लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी आहुति की तैयारी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने पात्र जला लिया है, कंडे जला लिए हैं। कंडे किसी भी ऐसी चीज से जलाए जाते हैं जो कि नेचुरल हो। और उसके बाद हम अपनी आहुति तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हम हमारे टाइम का वेट करते हैं कि जिस टाइम पे सूर्योदय या सूर्यास्त का, जिस भी लोकेशन पे हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, उस टाइम पे जो भी सूर्योदय सूर्यास्त का समय है, उस समय का हम वेट करते हैं। उस समय तक हमने ये सारी तैयारियां करके रख ली है। अब अग्निहोत्र करने की सिंपल से 5 जो प्रिंसिपल होते हैं, जैसा अभी बताया ही था कि पहला जो प्रिंसिपल होता है कि वो निश्चित समय पे किया जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है कि उसको निश्चित आकार के पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में किया जाता है। तो पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में इसलिए करते हैं क्योंकि पिरामिड के अंदर एनर्जी होती है। जैसा हमें पता है कि जो मिस्र के पिरामिड है, वहां पे इतने साल पुरानी डेड बॉडीज भी डिके नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे उसके अंदर एनर्जी होती है। तो वो पॉट उल्टा रखा होता है, मतलब वो जो पिरामिड स्ट्रक्चर है वो उल्टा होता है, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहती है। हम हमारे पॉट को सीधा करके रखते हैं, तो वो थ्रू आउट द डे कॉस्मोस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे घर में डिसेंट्रलाइज करता है और हमारे घर के एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करता है, एक पॉजिटिविटी का एनवायरमेंट लेके आता है। ये इसका सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल है कि जो अग्नि तैयार की जाती है, वो गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, गौवंश, जैसे गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, हम उनके कंडे जो है वो यूज करते हैं अग्नि तैयार करने के लिए। तो जैसा हमें पता ही है कि गाय के जो गोबर होता है उसमें बहुत ही मेडिसिनल इम्पैक्ट होते हैं। उसमें आपको रेडियो एक्टिव वेव्स को से हमें प्रोटेक्ट करता है। जो गाय के कंडे होते हैं, यदि हम उन्हें एग्रीकल्चर में यूज करें, फार्मिंग में यूज करें, तो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इस तरीके से हम गाय के कंडे यूज करते हैं। ये इसका थर्ड प्रिंसिपल होता है। फोर्थ प्रिंसिपल होता है कि हम चावल और गाय के घी की आहुति देते हैं। ये फोर्थ प्रिंसिपल है। तो इसमें हम ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो राइस होता है उसका कंपोजिशन होता है आपका स्टार्च एंड मॉइस्चर। तो जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब H2O, और जब हम कंडों को जलाते हैं तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो जब H2 और CO2 दोनों रिएक्ट करते हैं तो HCHO, फॉर्मल्डिहाइड गैस, प्लस O2, ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस वो गैस है जो कोई भी डॉक्टर किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को उससे स्टरलाइज करता है, जिससे कि कोई भी इंफेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना जाए।
तो इस तरीके से यदि ये गैस हमारे घर में रोज सुबह बनती है, हमारे घर में रोज शाम को बनती है, तो हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन खत्म होता है और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हम फिजिकली और मेंटली हेल्थी होते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल होता है इसका चैंटिंग ऑफ मंत्रास। तो जो मंत्र होते हैं, जो भी वैदिक मंत्र होते हैं, उनमें एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करने की क्षमता होती है। जैसे हम ओम चैंट करते हैं तो उससे भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। जैसे कुछ लोगों से मिलने के हमें अच्छा लगता है, कुछ लोगों से मिलना हमें पसंद नहीं होता। तो इसी तरीके से हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति देते हैं। ये इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है। तो देखिए 6:28 का टाइम है, 6:27 हो चुका है। 5 प्रिंसिपल हम बात कर चुके हैं। तो अब हमें करने के लिए क्या है, अब जो एग्जैक्ट 28 है उस पे हम आहुति देंगे। इसलिए हम ये जो ऊपर हमने कंडे का टुकड़ा रखा था उसको हम साइड में कर देते हैं और ये जो प्रॉपर स्पेसिंग तैयार होगी और इस स्पेस में हमें आहुति देनी होती है। अभी 15 सेकेंड्स बचे हैं, तो हम पहले अग्निहोत्र की आहुति देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आग्नये नये स्वाहा आग्नये इदम् मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम् मम। इस तरीके से हमने देखा कि अग्निहोत्र एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस होता है। अग्निहोत्र संपन्न हुआ। इसको करने में हार्डली 4-5 मिनट का समय लगता है और इतना सिंपल होता है कि एक 12-13 ईयर्स का बच्चा भी इसको इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो अग्निहोत्र करने के कुछ और मतलब नियम के नाम पर तो ये सिर्फ 5 सिंपल प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन अग्निहोत्र करने के लिए नहाना भी कंपलसरी नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन। किसी भी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन वैदिक साइंस है। इसलिए यदि हम सुबह उठ के नहाने की आदत रखते हैं तो इट्स वेरी गुड, लेकिन यदि हम नहीं नहा पाए हैं तो हमें अग्निहोत्र इसलिए मिस नहीं करना है कि हम नहीं नहा पाए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच मेक्स इट वेरी इजी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन टू परफॉर्म। अलॉन्ग विद दैट कि एक और बात ये कि यदि हमारा किसी कारण से मिस हो जाता है, मतलब हम आउट ऑफ स्टेशन है या नहीं नींद खुली है या किसी और कारण से यदि कभी मिस होता है, तो इससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता। हम जितना ज्यादा अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं हमें उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो गैसेज हैं वो बनेंगी, उससे हमारे घर का एटमॉस्फेयर प्योरीफाई होगा। बट अग्निहोत्र करने के बाद हमें 2-3 मिनट उस एटमॉस्फेयर में बैठना चाहिए, अपने स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखते हुए डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम वो गैसेस जो भी बन रही हैं उसको इनहेल कर सकें। उस एनवायरनमेंट में हम जो भी चीज करने की प्रैक्टिस रखते हैं, जैसे मेडिटेशन हो या योगा हो या जो भी हम करने की प्रैक्टिस रखते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 मिनट यहाँ पे बैठना चाहिए। दिस इज हाउ अग्निहोत्र इज परफॉर्म। सिंपल सा प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं। शालिनी जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है कि कैसे अग्निहोत्र कर सकते हैं। और मतलब देख के बहुत आनंद हुआ। और हमें भी उसका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम वहीं पे बैठ के कर रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छे से तरह बताया। मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न है। एक तो आपने एक श्लोक बोला है जो कि रात, मेरे ख्याल से ये शाम का श्लोक है ना, जो हाँ, मंत्र है, शाम का सुबह का मंत्र, हाँ मंत्र है। जी। तो जो हम्म। सुबह का मंत्र है वो भी आप बताइए, सुबह का क्या मंत्र है। और ओके। आप ये बताइए कि जहाँ जैसे हम लोग अलग अलग शहरों में हैं, तो कोई हम्म। इसका कोई तरीका है कि हमें सनराइज सनसेट का कोई ऐप या कुछ है जिसपे हम ये देख सकें और रोजाना हम नित्य इसको कर सकें। बिल्कुल। जो सुबह का मंत्र है, सूर्योदय समय का मंत्र है, वो है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम,
प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नामम। ये सुबह का मंत्र है। जब स्वाहा आता है तो जो हमने आहुति तैयार की है, 2 बार हमारे मंत्र में 2 बार स्वाहा आता है, तो जो भी हमने आहुति तैयार की है वो हम अग्नि में प्रेषित करते हैं। आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है, बाकी घर के जो भी मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं वो सब मंत्रोच्चारण करते हैं, पर आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है। और जहां तक टाइम टेबल की बात है, तो एक हमारे पास एक ऐप है टाइम टेबल का, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस ऐप के थ्रू आपकी मोबाइल की लोकेशन को वो ट्रेस करता है, और वहां की जिस भी लोकेशन पर आप रहते हैं, आप रह रहे हैं या उस समय भी प्रेजेंट हैं, वहां के सनराइज और सनसेट का टाइम आपको मिल जाता है। तो ये ऐप है, लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। तो उस लिंक के थ्रू आप जिस भी लोकेशन पर हो, उस लोकेशन का सनराइज सनसेट का टाइम आपको पता चल जाता है। बहुत अच्छा है। मैं कुछ और प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी श्योर श्योर। एक जो इसका जो ये अब ऐश बनेगा, जैसे हमने ये अग्निहोत्र संपन्न किया है, इसका जो राख बनेगी, उसका क्या हाँ लाभ है, थोड़ा वो बताइए आप। हाँ, देखिए अग्निहोत्र से जो ऐश बनती है, इसमें बहुत ही मेडिसिनल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो देखिए एक अग्निहोत्र चिकित्सा करके इस तरीके से एक बुक होती है। इस बुक के अंदर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियों के अंदर हम अग्निहोत्र ऐश को यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इसमें मोर देन 90 टाइप्स की डिजीजेस को क्योर करने का तरीका लिखा हुआ है। कि हम हाफ टी स्पून ऑफ राइस, मतलब ये ऐश को ल्यूक वार्म वाटर के साथ कंज्यूम करें या किसी और तरीके से, वो सब डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। इसमें आपका सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, इवन कैंसर का फर्स्ट स्टेज हो, और आपका दमा हो, या फिर आपकी एपिलेप्सी हो, इस तरीके की बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसको हम अग्निहोत्र ऐश को कंज्यूम करके ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही अग्निहोत्र ऐश से हम हमारे लेवल पे क्या करते हैं, हम हमारे पानी को, जैसे बताया था, नवीन ने बताया कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम अपनी एयर, वाटर और फूड ग्रेन सबको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि जैसे हम देख पता है कि जो आरओ का जो पानी होता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसका जो टीडीएस लेवल होता है, इट इज अराउंड 30 to 35 ओनली, एंड मिनरल्स बहुत ही कम होते हैं उसमें। तो मतलब हम पानी ले तो रहे हैं, पर उससे हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलती। तो हम व्हाट वी डू इट आर होम इज कि हम मतलब वही आरओ के पानी को एक कंटेनर के अंदर फिल करते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 25 लीटर्स ऑफ वाटर हम लेते हैं। और उसके अंदर एक बड़ा स्पून, जिससे अपन वेजिटेबल्स में जैसे खाना बनाते हैं ना, वो बड़ा वाला स्पून ऐश जो होता है, वो हम उस वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। और उस पानी को हम रात भर सेटल डाउन होने देते हैं, ऐश को सेटल डाउन होने देते हैं। इन द मॉर्निंग वो सेटल डाउन हो जाती है ऐश, और जो ऊपर का पानी है हम उसको सीव कर लेते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू टेस्ट इट, हमने किया हुआ है, तो उसका टीडीएस लेवल ऑलमोस्ट 90 to 100 पहुंच जाता है। मतलब उसके अंदर पूरे मिनरल्स होते हैं, बिकॉज अग्निहोत्र ऐश में टेस्टेड है, इट इज हैविंग मोर देन 90 मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। तो जब हम इस ऐश को हम पानी के अंदर डालते हैं, तो वो पानी लाइट हो जाता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ के साथ उसकी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, मतलब जो पानी है वो एल्कलाइन हो जाता है। एज वी नो कि हमारी जो बॉडी का जो 0 to 7 इज योर, मतलब 6.9 इट इज योर एल्कलाइन, इट इज योर एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल, एंड अबव 7 to 14 इट इज योर एल्कलाइन। तो हम बीमार कब पड़ते हैं, जब हम एसिडिक हमारी बॉडी होती है। तो जब हम एल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी भी स्लोली ग्रेजुअली जो होती है वो एल्कलाइन हो जाती है, एंड वी रिमेन हेल्दी। अलॉन्ग विद दैट, इस अग्निहोत्र ऐश से ब्रश किया जा सकता है। इफ समवन इज हैविंग एनी टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उससे हम ब्रश कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं। अगर स्किन प्रॉब्लम है तो उसको रब करके हम बाथ ले सकते हैं। तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से अग्निहोत्र ऐश को हम बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अग्निहोत्र चिकित्सा बुक में मेंशन्ड है। अमेजिंग, आई थिंक दिस इज सुपर्ब। घर में एक विधि है हमारे पास जो हम छुपा के रखी हुई है, हमें पता ही नहीं। एक्चुअली और हम कैसे नेचुरल तरीके से अपने पानी को, अपने खाने को सही सही कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि अमेजन पे यही अग्निहोत्र ऐश मैजिकल पाउडर के नाम से 2000 रुपीज पर केजी के रेट पर मिलती है। माय गॉड, तो आई थिंक इससे आप एक स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वी वर प्लानिंग फॉर दैट इवन एक्चुअली। अमेजिंग। मुझे थोड़ा ये बताइए कि जैसे आपने, ये तो घर की बात हो गई, अग्निहोत्र को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या इसका कृषि में भी यूज है, अग्निहोत्र ऐश का? बिल्कुल बिल्कुल, अग्निहोत्र जैसे बताया ना कि अभी अग्निहोत्र जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिससे हम और इसका इम्पैक्ट जो है सभी लिविंग बींग्स पर होता है। वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग और पैट्स और प्लांट, सभी पर उसका इम्पैक्ट होता है। हम सबको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स फॉर मींस क्रॉपिंग, इट इज केमिकल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग।
But there is one more method of अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग. सी, ये अग्निहोत्र कृषि क्रांति करके एक बुक होती है जिसमें हाउ टू मीन्स अग्निहोत्र कृषि किस तरीके से की जाती है वो पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट, उन्होंने रिसर्च किया है और उनके रिसर्च पेपर, उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सब इसमें पूरा लिखा हुआ है. बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे किसान हैं जो अग्निहोत्र फार्मिंग करते हैं और उन सबके जो भी रिजल्ट्स रहे हैं, उनके जो भी मीन्स कंक्लूजन जो भी उन्होंने निकाला है वो सारा इसमें लिखा है. तो अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस सिर्फ यही होता है, दो डिफरेंस होते हैं मेनली. एक तो डिफरेंस ये होता है कि अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम खेतों पर अग्निहोत्र करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे अग्निहोत्र किया जाता है. और सेकंड डिफरेंस होता है कि हम जो अग्निहोत्र ऐश है उसको हम सॉइल में ऐड करते हैं. तो बेसिकली जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं उसी तरीके से हमारे प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. तो जब हमारे को जैसे हम घर पे अग्निहोत्र करते हैं हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, उसी तरीके से जब हम खेतों पर अग्निहोत्र करते हैं, हमारे फील्ड्स पे अग्निहोत्र करते हैं, तो वहां का वातावरण शुद्ध होता है और हमारे पेड़ों को अच्छा वातावरण मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत हेल्दी रहते हैं. और जैसे न्यूट्रिएंट्स, हमें हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स चाहिए. उसी तरीके से प्लांट्स को भी मिनरल्स चाहिए. तो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स और बाकी 16 माइनर न्यूट्रिएंट्स. मेजर न्यूट्रिएंट्स एनपीके. तो जो मेनली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स लेते हैं आपके एटमॉस्फेयर से, दैट इज 90 मोर देन 90% न्यूट्रिएंट्स वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड लेस देन 10 दे आर टेकिंग फ्रॉम द सॉइल. सो जब न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर प्योर ही नहीं है तो वो हमारे प्लांट्स को प्योरीफाइड फॉर्म में मिलता नहीं है. तो इसीलिए जब हम अग्निहोत्र वहां पे करते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं और प्लांट्स हमारे हेल्दी रहते हैं. ये बहुत सारे लोगों का रिसर्च करने के बाद उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं कि अग्निहोत्र फार्मिंग करने से हमारे अर्थवर्म्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इवन जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड जो हमारा यील्ड पर कैपिटा है वो इंक्रीज हो जाता है. अलॉन्ग विद दैट जो हमारा टेस्ट है, टेक्सचर है, जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और जो प्रोडक्शन हुआ उस वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है. तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल डिस्कशन है, इट इज ऑल एक्सपेरिमेंटेड. Although we are not farmers, but yeah, I have done engineering in agriculture only. So little bit of interest I am even having towards agriculture. So मतलब when we were in Jaipur, native में हमारे, तो वहाँ पे we were having means big house था हम लोगों का, duplex house था. So over there we were having our kitchen garden. So not at very big level, but like पालक हुआ, मेथी, धनिया एंड आपका टोमेटोज, लेडी फिंगर, ऑल दीज वी वर इवन ग्रोइंग एंड लिटरली मतलब द टेस्ट वाज अमेजिंग. एक हम बाजार से जो खरीदते हैं और एक हम जो घर पे इस तरीके से ग्रो करते हैं, उनके टेस्ट में ड्रास्टिकल डिफरेंस होता है. इवन जो भोपाल माधव आश्रम इसका ओरिजिन प्लेस है अग्निहोत्र का, वहाँ पे भी 2 एकर्स का लैंड है, वहाँ पे भी पूरी तरीके से अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है. तो वहाँ पे जब भी हम जाते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह जब हम इनटेक करते हैं तो मतलब वो लगता है कि हाँ हमने कुछ अलग कुछ अच्छा खाया है, वो चीजें वी कैन फील दैट. I can truly validate on that because हम जो प्राकृतिक कृषि करते हैं तो उसमें अग्निहोत्र हमारा एक इंटीग्रल पार्ट रहता है. दैट्स और रियली नाइस. हम उसमें जब हमारा वाटर इरिगेशन होता है तो उसके चैनल के थ्रू हम पहुंचाते हैं. या एग्जैक्टली. think एश. many of या. yeah, and we have seen it first hand कि वो डिफरेंस आता है वेजिटेबल्स में. यस. आई थिंक तृप्ति का एक सवाल है, वो तृप्ति अगर पूछना चाहें उसके बाद हम और भी आगे चर्चा करेंगे. तृप्ति. श्योर. शालिनी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अग्निहोत्र को हम परफॉर्म करते हैं तो सनराइज और सनसेट टाइम पर ही परफॉर्म करते हैं. हाँ जी. हाँ जी, तो वो उसका सिग्निफिकेंस जानना चाहती थी कि मतलब ऐसे टाइम स्पेसिफिक क्या सिग्निफिकेंस रहता है उसका. सी देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो अग्निहोत्र है उससे के थ्रू हम अपनी बॉडी को अपनी नेचर से सिंक्रोनाइज करते हैं. होता क्या है कि थ्रू आउट द डे हमारा कभी 1 आवर के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल वर्क करता है, 1 आवर के लिए राइट नॉस्ट्रल वर्क करता है. लेकिन जो हमारा जो ट्रांजिशन टाइम होता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, इस समय हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स एक साथ वर्क करते हैं. मीन्स हमारी जो बॉडी है वो कॉस्मोस से जो एनर्जी आती है उसको अवेल करने के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है. सेकेंडली यदि हम देखें तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो इस समय पे ब्रीथ करती है.
नॉट थ्रू आउट द डे, बट ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है जब आपका फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इट इज चेंजिंग एंड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इट इज चेंजिंग, ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है इसको सर्केडियम रिदम भी बोलते हैं। तो इस समय पे हमारी जो बॉडी होती है, लाइक सुषुम्ना नाड़ी विल बी ब्रीथिंग ओवर एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड बोथ द नॉस्ट्रल्स वर्क टुगेदर। सो अगर आप चाहें बीचेस पे जाते हैं यदि हम, तो आप देखेंगे कि जो सनसेट का टाइम जो होता है उस समय पे जो आपकी हाई टाइड्स आ जाती हैं। वाई बिकॉज, और अगर आपको पता हो तो जो आपका जो मतलब जो पागलपन का जो जिनको बोलते हैं ना, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो अमावस्या पूर्णिमा को इट इज एट पीक, because all these are related to our nature only. So that's the reason it is being performed exactly at the time of sunrise and sunset. अमेजिंग ओके, अमेजिंग। थैंक यू। शालिनी जी, मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि जैसे आपके परिवार ने ये शुरू किया, तो ये जो अग्निहोत्र की प्रथा है, ये कितनी पुरानी है और ये कैसे चलते चलते आपके पास आई और अब हमारे पास आ रही है, तो ये आप इसके बारे में बताइए। श्योर। सी, अग्निहोत्र ऐसा नहीं है कि ये अभी ही स्टार्ट हुआ है, अग्निहोत्र प्राचीन समय से होता था। यजुर्वेदा के अंदर इसमें मेंशन्ड है, लॉर्ड रामा ने थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज परफॉर्म्ड अग्निहोत्र। जैसे जो हम बोलते हैं राम राज्य, उसका आधार ही अग्निहोत्र था। लेकिन फिर धीरे धीरे यज्ञों के अंदर बलि प्रथा स्टार्ट हुई, तो जो कि एक अच्छा कर्म नहीं है। दैट्स द रीजन भगवान महावीर आए, भगवान बुद्ध आए और उन्होंने ये सब बंद करवाया, क्योंकि उसके अंदर उसको सही तरीके से ना होके वो गलत तरीके से होने लगा था। लेकिन इस एरा का जो फर्स्ट अग्निहोत्र है वो 1963 में महानुभाव श्री माधव जी पोदार साहब, ये उनका फोटो है, माधव जी पोदार साहब, इन्होंने 1963 में पहला अग्निहोत्र यहाँ पे इस एरा का स्टार्ट हुआ था। द डेट वॉज 22 फरवरी, इसीलिए 22 फरवरी को अग्निहोत्र दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है, इस फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। थ्रू आउट इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग 22 फरवरी एज अग्निहोत्र जयंती। तो ये सेलिब्रेट होता है। तो इस एरा का पहला अग्निहोत्र 22 फरवरी 1963 को स्टार्ट हुआ था। हमारे घर में स्टार्ट कैसे हुआ था? मजबूरी में स्टार्ट हुआ था, आई वुड से। इन द ईयर आई एम 1981 born. So when my mother was pregnant in the year 1981, at that time suddenly she had epilepsy. Before that she was completely fit and fine. मतलब उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, 2.5 years elder to me. So till then she was completely fit and fine, but during pregnancy suddenly she had epilepsy. So doctor suggested कि throughout your life she had to take medication, and 500 mgs की टेग्नेटॉल मेडिसिन she was taking thrice a day. दिस वॉज, मैं डॉक्टर ने कहा था कि आप अपनी लाइफ में कभी खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकेशन नहीं भूलना है। अपन देखते हैं कि चाहे से शुगर हो चाहे से बीपी हो, हम उसको सिंपली मेडिसिन ले लेके कंट्रोल करते हैं, वी आर नॉट क्योरिंग इट। तो ये तो न्यूरो का इतना बड़ा डिजीज था, तो क्योर होने का क्वेश्चन ही नहीं था। एंड द स्टेटस वाज लाइक, मतलब मदर कभी भी किचन में अकेले खाना नहीं बना पाती थी, बिकॉज फेट्स कभी भी आते थे, टॉयलेट स्लेज नहीं कर पाती थी, बिकॉज सीवियर, बहुत सीवियर प्रॉब्लम था उनको। दिस केप्ट ऑन गोइंग फॉर 3 years एंड मतलब उनका मेंटल स्टेटस वाज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। माय फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, एट दैट टाइम हिज पोस्टिंग वाज इन कोटा। सो इन द ईयर 1984, अप्रैल 1984, मेरे पापा के एक स्कूल फ्रेंड है विष्णु पोद्दार, वो अभी जयपुर में ही रहते हैं, उस समय भी वो अग्निहोत्र करते थे। तो ही सजेस्टेड कि यू आर हैविंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज एट योर प्लेस, सो बेटर टू स्टार्ट अग्निहोत्र। दिस इज हाउ मजबूरी में हमारे घर में 1984 अप्रैल में अग्निहोत्र स्टार्ट हुआ था। एंड विद इन 2-3 months ऑफ परफॉर्मेंस माई फादर रियलाइज कि नहीं, मतलब मदर की हेल्थ में इंप्रूवमेंट है। अगर मेडिकेशन से ही होना होता तो 3 years में भी कुछ चेंजेस दिखते हैं, but it was because of Agnihotra. So gradually after 6 months, he started reducing the doses. And within 3 years, completely stopped, my mother completely stopped taking medicines. Now it is more than 37 years. She has not taken even a single dose, and not even a single attack is there. This is how Agnihotra became our first priority. And because everything we have got from Agnihotra basically. See, we all are busy with our work, we all are busy with earning money and for our livelihood, but एक जो पीस, एक जो सेटिस्फैक्शन, एक जो हैप्पीनेस होती है, वो हमें अग्निहोत्र से मिलती है। एक सिक्योरिटी, मतलब एक बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम आएगी आएगी, ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ 100% स्मूथ चलेगी, इट्स नॉट लाइक दैट। बट स्टिल आपको एक कहते हैं सुरक्षा कवच जो होता है ना, वो प्रोवाइड होता है। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम से बहुत इजीली निकल जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम आई और इजीली निकल गई। दिस इज व्हाट अग्निहोत्र हैज गिवन अस, दैट्स द रीजन वी इवन ट्राई टू, मींस द 2 days when we are having the time, we are trying to propagate it even, and yeah, because we are getting happiness and satisfaction which we are not getting from the money. So
that is the most important thing we are having actually. No, amazing Shalinji, I can totally relate to it, and I have personally seen that जो आपकी मतलब you have actually told the validation which has happened with you. So Actually, इससे बड़ा validation और क्या चाहिए? क्या And चाहिए? I would like all the other audience members to be keep on their video on, and we are almost on the end of the conversation. तो किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं related to अग्निहोत्रा practice कैसे करें और कैसे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो या थोड़ा सा या ये भी बताइए, जैसे आप ये जो अग्निहोत्र की किट की और बुक्स की बात कर रहे हैं, या तो ये हम कैसे ले सकते हैं और कैसे मंगा सकते हैं? या जस्ट नवीन विल हेल्प यू आउट इन दिस। ओके, सो बेसिकली अग्निहोत्र किट जो है वो अवेलेबल है। देखिए, आप किट के अंदर आपका एक पॉट आएगा, स्टैंड है उसका, जैसे ये स्टैंड है, और चिमटा है, स्पून है, ऐसे के ये किट रहेगा। ये देखिए, ये पात्र है, ये स्टैंड है, ये चिमटा है, स्पून भी इसके साथ में आती है। ये सब कॉपर का बना हुआ सामान है। और ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, चिकित्सा वाली बुक है, अग्निहोत्र की बुक है, आपकी कृषि वाली बुक है, ये सब चीजें अवेलेबल है। और जिसको भी चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं आराम से। और हम आपको वाया कोरियर या वाया क्या नाम से पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको जब भी आपको लगेगा आपको भिजवा सकते हैं आराम से। तो वो अवेलेबल है, क्योंकि देखो घर में, अपने घर में गाय का घी मिल जाएगा आराम से। राइस शुड बी अनब्रोकन, आपके चावल होने चाहिए अनब्रोकन, यानी अक्षर जिसे हम बोलते हैं वो चावल में यूज करना है। जो राइस हम लोग घर में खाते हैं सेम राइस हमें यूज करने होते हैं एक्चुअली, लेकिन होना चाहिए अनब्रोकन एक्चुअली। तो राइस आप अगर में अवेलेबल है, घी घर में आपके मिल ही जाएगा। आप ये मान सकते हैं कि 250 ग्राम राइस जो है आपके काफी एक महीने के लिए। 250 ग्राम राइस काफी एक महीने के लिए, और 50 ml देसी घी काफी एक महीने के लिए, यानी खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा। खर्चा क्या हो रहा है, केवल गाय के जो कंडे हैं, आपको उसको अरेंज करना है। मतलब 400-500 पे आपका महीने का खर्चा है, उसके बदले में पूरी फैमिली को अच्छा हेल्थ आप दे पा रहे हैं। पूरी फैमिली मतलब आपकी जो भी मतलब पेरेंट्स है, अपने स्पाउस हैं, चिल्ड्रन है, कोई भी घर में है, सबको एक अच्छा वातावरण मिलता है। तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। तो किट अवेलेबल है, वो हम पूरा सपोर्ट है। आप जब भी बताएंगे आपको, आप एक बार सेंट्रली कोऑर्डिनेट कर लीजिए, और आपको वो मिल जाएगा वाया स्पीड पोस्ट और वाया कोरियर, ये अवेलेबल है। Sure, Naveen ji and Shalini ji. I would like to open the forum for any questions. There are so many people. If there is any question from anyone, please ask. Yeah. Jyoti ji, Praful ji, Shefali ji, Radhika ji, Sakshi ji. And if you have any kind of questions, मेरे तो कुछ questions और हैं, मैं पूछूंगा, but I want that if you can ask. Yeah, Shefali ji, please. You can also come on video, Shefali ji. Yeah, hi. Thank you so much, Sanchit ji, for organizing this beautiful session. And I really want to thank for listening to the speakers. तो मैंने एक बार ट्राई किया था and yes, it was fabulous. मैंने खरीद के भी लाके रखा है. Somebody actually gifted it to me कि now you can do it regularly. And I think since a month it was coming to me again and again कि इसको थोड़ा सा I should think about it. Like थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए. So आज जब संचित जी ने पोस्ट डाला, I thought कि and I had the time, so I said let's listen. Time is सुन लेते हैं. So I want to know कि आपने अपनी मदर का एक्सपीरियंस बताया, which is very profound. What about things in your life and the next generation in front of you? Okay. See, as per medical science, when my mother was pregnant, because it was means उस समय में उनको ये disease हुआ था, so it should have transmitted to me even. But right now I am touched with 543, but till now there is not even a single attack. This is what I am having experienced. Right now I am having two daughters. Even we have two daughters. Both are completely fit and fine. And just as I mentioned, the peace, the happiness, the satisfaction level, which we are not getting from money, which we are not getting by anything else, we are getting from means performance of Agnihotra. Our medical expenses are almost zero. Hardly when hardly we are बहुत कम ऐसा कुछ chance आता है कि we need to consult any doctor. So this is what we are experiencing.
एक घर में कॉर्डियल इन्वायरमेंट है, सब लोग घर पे सेम डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाते हैं, जो इट इज रेयर टू फाउंड दीज डेज. So all these are experience which we are which we feel it is very important and we are having it. या वन मोर एग्जाम्पल इज, जैसे हमारी बड़ी बेटी है ना, अभी आप देखें उसने 10th में 98% स्कोर किया है, 98% मार्क्स Without any सो बेसिकली ये सब भी क्या है, आपका एनवायरनमेंट एक्चुअली. बच्चे पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, जो आजकल बहुत डिफिकल्ट है ढूंढना. आज आप देखें बच्चों में कितनी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है. आज आप मीडिया देखें, न्यूज़पेपर देखें, बहुत जगह क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन आप यदि देखते हैं जो फैमिलीज अग्निहोत्र करती है, आप उनके बच्चों को देखेंगे, आपको लगेगा डिफरेंस है एक्चुअली. और सिंपल सा प्रोसेस है, 5 मिनट चाहिए सुबह, 5 मिनट शाम को, लेकिन इसका फायदा सब लोगों को मिलता है. तो बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, बच्चे पढ़ने में आईक्यू लेवल उनका बढ़ता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने को बच्चों के ऊपर भी एक्चुअली. तो ये सबसे बड़ा उसका फायदा है एक्चुअली. थैंक यू. एक और क्विक क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी बड़ी संख्या में लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, आपने बताया है. तो क्या आप लोग का कोई ऐसा फोरम है जहाँ पे आप लोग का आपस में कोई शेयरिंग होता है, या कुछ मैगजीन है, इज देयर समथिंग? एक माधव आश्रम का एक ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है जो ऑल ओवर इंडिया का ग्रुप है. उसके अंदर काफी सारे अग्निहोत्र फॉलोअर, अग्निहोत्र करने वाले, अग्निहोत्र प्रोपगेट करने वाले लोग सब उसमें कनेक्टेड हैं. सो दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर इंडिविजुअली. इवन वी ऑल आर हैविंग द ग्रुप्स, लाइक वी आर हैविंग बैंगलोर ग्रुप, इंदौर पीपल आर हैविंग देयर इंदौर ग्रुप, राजस्थान पीपल आर हैविंग देयर राजस्थान ग्रुप, Mumbai people are having their Mumbai group. Individually, even everyone is connected with each other through WhatsApp groups, and overall it is like Madhav Ashram का एक group है. By that we all are connected all over the India level पे we all are connected. Okay, lastly, if you would want to tell someone कि चलो कितने दिन एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, तो how many months or days would you ask a person कि एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट्स को पाओ? See, satisfaction and happiness you will be feeling within 2-3 days. Yeah, but if you are talking about like means health and all that, so it will take 2-3 months. Like if on health you wanna means consider कि हमें check करना है कि अपनी health पे कितना, हमारी family में कितना impact आ रहा है, that will take 2-3 months. But peace, happiness, all that you will realize within 3-4 days. यस, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ हेल्थ के बारे में. आपने अगर सुना हो कि भोपाल में MIC गैस का लीकेज हुआ था, राइट? MIC स्टैंड्स फॉर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, विच इज क्वाइट पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली गैस होती है. उस गैस के हिसाब से 30 से 35 हजार लोग मारे गए. बहुत सारी फैमिलीज थी जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए. बहुत सारी लेडीज थी जो प्रेग्नेंट थी, एंड डॉक्टर ने बोला कि प्लीज गो फॉर डिस्कार्ड द बेबीज, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. लेकिन मैम, there were two families who were doing Agnihotra at that point of time, and there was no single casualty in those families. Can you believe it? There was no single casualty. There was no published article, impact. published हाँ, article. और ये पूरा MP क्रॉनिकल न्यूज़पेपर निकलता है, जैसे भास्कर आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वैसे ही वहां पर भोपाल में एक MP क्रॉनिकल न्यूज़पेपर लिखा था. उसने पूरा अखबार दिया, पूरा पेपर का दिया कि देखो ये फैमिली अग्निहोत्र हवन करती है और इनमें कोई इल इम्पैक्ट नहीं आया. सो बेसिकली इट सेफगार्ड्स फ्रॉम योर इल एनवायरमेंट. सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये आपको सेफगार्ड करता है अपने इल एनवायरमेंट से. तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे होता है ना कि बारिश में हम लोग निकलते हैं तो जनरली हम छाता, अम्ब्रेला कैरी करते हैं ताकि हम लोग भीगे नहीं, राइट? तो ये बेसिकली आपका एक सुरक्षा कवच है, जो भी बताया भी था, वो आपको सेफगार्ड करता है इस सब चीजों से एक्चुअली. पर करना आपको पांचों नियम से है. आपको जब भी करना है, प्लीज यूज द 5 प्रिंसिपल्स टुगेदर, कंबाइन द 5 प्रिंसिपल्स टुगेदर, देन ओनली विल गेट द बेनिफिट. आई जस्ट रिपीट वंस अगेन. सुबह और शाम, सूर्योदय सूर्यास्त पर करना होता है. सेकंड नियम, आपको जो जो डेफिनेट शेप एंड साइज का जो पॉट है कॉपर का, जो पिरामिड पात्र, उसमें करना होता है. थर्ड प्रिंसिपल, काउडंग केक्स है, आपको उससे करना होता है. फोर्थ प्रिंसिपल, 2 चुटकी चावल, अनब्रोकन अनकुक्ड राइस, और वो होंगे आपके मिक्स 2-3 बूंद गाय के देसी घी से, वो आपको यूज करना है. और पांचवा प्रिंसिपल है, आपको 2 मंत्र बोलते हुए आहुति देना. बहुत सिंपल से मंत्र है. इवन मेरी बड़ी बेटी जो है वो अकेले हवन करती जनरली, जब हम लोग कहीं बाहर होते हैं तो शी कैन डू अलोन एक्चुअली, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. शालिनी जी एंड नवीन जी, जस्ट टू ऐड, मेरी बेटी जो 4 साल की है वो भी कर लेती है. अरे वाह, अरे very वाह, nice. It's very nice. I mean, बहुत बढ़िया.
और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, शिफाली जी ने पूछा है कि और कहाँ कहाँ ये होते हैं अदर देन इंडिया. There's an entire society of Agnihotra and Agnihotra farming systems. If we talk about Australian cycles, if we talk about German, there are people who are doing it regularly and they have seen their results both at their farm and at a personal level. And these are published articles. Means we can have, it's a research, validated research articles where they have done pre and post Agnihotra, परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ा उनके एनवायरनमेंट में, ऑरा में. एक चीज और जो आई थिंक नवीन जी ने ऐड नहीं किया, कि जब आप अग्निहोत्र करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ घर तक नहीं रहता, वो 1.5 मील तक आपके जो आपका रेडियस है वो 1.5 मील तक फैलता है. तो अब बिल्कुल इमेजिन करिए जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो इससे कितना ज्यादा कर्ब होगा, जैसे उन्होंने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल बताया, बिकॉज इट इज स्टेरिलाइजिंग द एनवायरनमेंट, राइट. सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड आई थिंक एक चीज मुझे जो पूछनी थी जल्दी से, वो ये था कि मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ संकल्प ऑफ डूइंग 1,000 पीपल टुगेदर कमिंग एंड डूइंग अग्निहोत्रा इन कमिंग मंथ्स. द डेट इज नॉट प्लान्ड, बट नाइस. दिल्ली से एनसीआर का ये चैप्टर बनाएंगे एंड आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू. वी वांट दैट मैक्सिमम पीपल कम टुगेदर एंड डू इट फिजिकली एक बारी. एंड आई एम प्लानिंग कि वो 1,000 लोगों का एक ग्रुप रहे जो एक साथ ये अग्निहोत्र करे और इसका इम्पैक्ट भी देखें. तो आई इनवाइट एवरीवन टू बी. बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत ही नेक कार्य है एक्चुअली ये, क्योंकि प्रकृति से क्या होता है, अग्निहोत्र एक्चुअली आपका जो 5 एलिमेंट्स, जो पंच तत्व होता है, उसको भी फीड करता है एक्चुअली. पंच तत्व आपने अगर देखा सुना हो कि आकाश तत्व है आपका, क्या नाम से, जल है आपका, वायु है आपका, अग्नि है, सबके ऊपर अग्निहोत्र का प्रभाव रहता है एक्चुअली. तो बहुत अच्छा कार्य है. यदि हम लोग यदि 1,000 यदि लोग असेंबल हो जाएं, एक साथ परफॉर्म करें, हम भी ट्राई करेंगे. यदि बेंगलोर से आना हो पाया हमारा पक्का, तो वील आल्सो ट्राई इट एंड टू I बी think पार्ट we ऑफ दिस. can do it at a multiple location. Like you can take a place there itself and we can have, because वो एक ऐसे या नहीं होगा, वो एक ही टाइम पे 1,000 लोग चाहे अपने घर पे ही करें. It is not like go करेक्ट. हाँ, to one place. वो तो टाइम टाइम वेरी करेगा, लेकिन हाँ ऐसा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. वी कैन स्टार्ट इन दैट दैट थिंकिंग प्रोसेस. बहुत अच्छा है. I think there is one question that Sakshi, you can come on video and you can ask your question. It would be good if you can come on video. Okay. So there's a question from Sakshi that what if it is done incorrectly? Are there any adverse effect of this if it is done incorrectly? If somebody misses the 5 principles or maybe not aligned on the time of sunrise sunset, उससे थोड़ा सा लेट हो गया या थोड़ा सा जल्दी हो गया तो नहीं, उसका नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा भी नहीं होगा. अच्छा, वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा. वो इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म खत्म हो होगा जाएगा. लेकिन नुकसान नहीं होगा. हम्म. जैसे कई बार क्या होता है, मैं एकदम अग्निहोत्र के सनराइज का जो समय होता है 6:23 का या 6:25 का या सुबह का, मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ अरे यार टाइम हो गया, तो मैं फिर मेरा स्किप हो जाता है. तो इज हाँ, इट लाइक थोड़ा सा 1-2 मिनट चलेगा, दो ऊपर नीचे होता है तो. नहीं, वैसे करना ही नहीं चाहिए. अगर अग्निहोत्र का टाइम निकल जाता है तो अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए. लेकिन मतलब नुकसान फिर भी नहीं होगा. अगर आप कर लेते हैं तो नुकसान नहीं होगा, पर फायदा भी नहीं होगा. तो द मेन प्रिंसिपल इज दैट सनराइज का टाइम. एक्चुअली दिस Is इज द there a मेन science प्रिंसिपल. science behind this also? Like other than you are talking about the rhythm and all, is there a scientific reason of this cited reason, I would say? एक्चुअली सी देयर इज टोटल टाइम फॉर सनराइज एंड सनसेट इज 6 मिनट्स. पूरा सनराइज होने में, पूरा सनसेट होने में 6 मिनट्स लगता है. पर Hmm. फॉर अग्निहोत्र परफॉर्मेंस वी टेक द मिडिल रेट, बिकॉज एट दिस टाइम जो एनर्जी होती है वो पीक पर होती है. दैट्स द रीजन जो हमारा न्यूज़पेपर में टाइम आता है और वो हमारा जो अग्निहोत्र का टाइम है दैट विल इवन वेरी. रीजन बीइंग दे आर कंसीडरिंग द फर्स्ट रे एंड वी विल कंसीडर द मिडिल रे. मिडिल रे पे जब होता है उस समय पे एनर्जी पीक पर होती है. So that's the reason we are Agni time is little bit different from that what is mentioned. One more question I have is for the newborn. The air which is getting released from this, जो fumes आते हैं, is it safe for newborns? Particularly yes, because both of our daughters born in that environment only. Before that only they were having that environment. So बिल्कुल from the very first day they have attended Agnihotra. Correct. Means 2 days जो hospital के होते हैं, we just leave that. After that means from that the day they have entered in the home they have performed Agnihotra from that particular day. Is any day when you have skipped it or it is missed? क्योंकि Means whenever we are traveling at that time only it is missed, otherwise not.
Okay. And I would ask Pearl to share, a feedback form. We have a feedback form for the session. Pearl, can you share it on the chat? Uh, I think we are almost at the end of the session now. And I would like to thank Naveen ji and Shalini ji for the wonderful practical जो आपने करके दिखाया है. आई थिंक मेरी भी कुछ जो गलतियां थी मैंने सीखी हैं, जो मैं थोड़ा गलत कर रहा था चीजों को. So I would improve on my Agnihotra practice, what I am doing. I do have my own kit and all, which I अरे keep. वाह, that is nice. Yeah. So amazing for the lovely session which you have, the knowledge you have shared with us. And I would like everyone to please fill the form which Pearl has shared. It's a small form, the entire feedback on how the session was, and what we can do better for the next session. The entire series which we are talking about, Rhythm of Nature, is aligned where we will be doing different conversations from expert speakers on different topics which benefit nature, with benefit us, because we are also a part of nature in a healthy way and a natural way. And again, to repeat about what we do, we are China Healthy Naturally, where we enable farmers for Prakritik Krishi. प्राकृतिक कृषि जो नेचर से अलाइंड है, नेचर के प्रैक्टिसेस से अलाइंड है, एंड अग्निहोत्रा इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. देसी गाय इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. सो जो ये देसी कंडे की बात कर रहे हैं या अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं, वो हमारे फार्मिंग में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं और उसका हम बेनिफिट भी डायरेक्टली देखते हैं. सो आई वुड अगेन लाइक टू thank Naveen ji and Shalini ji. And One more thing, someone has asked, it is not related with any of the god. इसका किसी भी भगवान से इन सब से कोई संबंध नहीं है. किसी का क्वेश्चन आया है शायद. yes, Sakshi has Yeah. asked. It is not Yeah. related to any It is religion. not related with any god. It's simply we are means nurturing nature. It is simply we are connecting our body with the nature. That's it. It's not related with any god. It's a simple practice to purify your environment. It has a direct impact on the air purification. Yeah. So if it is just a 5-minute practice, if you take, अगर आप रोज इसको करेंगे घर में, you can see that difference in your environment and you can actually test it. आप वो sensors आते हैं ना आजकल, जो air purification के sensors आते हैं, you can test with them the level of purity you have in the air inside your home versus outside. ये मतलब we have done that. Yeah, Yes, yes. and even oxygen level you can check before performance of Agnihotra and after performance of Agnihotra. We have checked that even there is a change in the means it oxygen level increases because of the performance of Agnihotra. And I think Tripti has a question. Tripti, please. क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली. काफी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया था, बट लाइक 35-40 लोगों ने, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है. तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे क्या ग्रुप के अंदर? This recording will be like the recording is already done. This video will go to the our YouTube channel. I would ask Pearl to also share the YouTube subscription link, and you all can subscribe it and share it with your loved ones. We want more and more people to come and practice this method, because air pollution तो आज सबकी problem है, and this is the most natural way of curbing the pollution at your home at least. ये एयर प्यूरिफायर और ये सब तो अच्छे हैं, बट ये नेचुरल तरीका है एंड इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है. जैसा कि शालिनी जी ने बोला, नवीन जी ने बोला, आपके मेडिकल बिल्स कम हो जाते हैं. आप देखेंगे आपका बॉडी है वो जो भी चेंजेस है नेचर में उससे वो अलाइंड हो जाता है, उसको इम्पैक्ट कम पड़ता है. तो Pearl, please do share that subscription link of the channel also. I request everyone to fill the feedback form. It helps us to design and ask the experts, and we will be having more such sessions. We have the next session which is planned from a Agnihotra, from a naturopathy perspective. We will be doing it soon, completely from a practitioner who is a naturopath and who has been again doing Agnihotra in group for daily basis, and also on every Ekadashi with a group of some 100 people, and we'll see his experience, her experience, what their experience is of Agnihotra. And then we have planned certain more workshops around natural farming, about health and others. We have Shefali ji, she's a Vaidya. Shefali ji, please come on video. She's a Ayurvedic Vaidya, and we will be planning some sessions with her too. So everyone, please help us with filling the form, the feedback form. And again, thank you, Shalini ji. Jyoti ji, do you have a question? Please unmute yourself.
Uh, Jyoti ji, you can you unmute yourself? There's a button which is coming. Just tap that. No, you are still on mute. So meanwhile, there is a question from Sakshi. Does it also help in curing arthritis? For arthritis, there is no such experiment conducted, but definitely it is having impact on each and every disease. So can't claim because not yet checked. Means none of our relative has faced this problem. So definitely, but it is having impact on health issues for physical and mental health. So definitely, it will be having impact on that even. Okay. It is mentioned on the book you have shown? No, it's not there. I don't think it is there. I need to check it, but I don't think arthritis is mentioned over there. Okay, great. Chickenpox is there, means dama is there, and epilepsy is there. Like 90 types of diseases are there, but I don't think it is there. Okay. And anyone, if you would like to have that kit or the books, we have also, please fill the feedback form. We will reach out to you for the kit and the books, and you can order it, and it will be parcel to you. Jyoti ji, I hope you are not able to unmute yourself. So see if you can unmute. Just tap it. There's a button to tap and unmute. If you have someone around, you can ask them to unmute. Hello. Yeah, Radhika ji. Yeah, I have one question. Is it okay if I do this Agnihotra only in the evening time? Yeah, Since you can do. It is better to perform both the times, but if you can't do both the times, so okay, something is better than nothing. So you can go for one time also. yeah, because morning times is usually busy, so can we go only in the evening time, continuously only in the evening time? Yeah, whensoever it is possible for the morning, even like on weekends, you can do. Means whensoever it is possible, you should perform it. Otherwise, if you are skipping in the morning time, so there is no issue. Okay. Is there any particular direction that we have to sit and something like that? Nothing like that. No direction. You can means what we are doing is we are all four are sitting in all the four directions, and one is offering, and rest all are chanting the mantras. So no direction. Okay. Thank you. So there's a least foundation in this particular Agnihotra practice. It's not like any other yajna where there is a foundation of यजमान and all. यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. हमें नीचे बैठ के बस हमें ध्यान रखना है जो 5 प्रिंसिपल नवीन जी ने बताए हैं कि वो हमारा पात्र पिरामिड का हो जो कॉपर वेसल है, डायमेंशन उसका वैसा हो, गाय के कंडे हो. गाय के कंडे का यहाँ पे मतलब है जो देसी गौवंश है. आजकल हाइब्रिड गाय भी आ रही है, जर्सी गाय भी आ रही हैं, तो वो ना हो. देसी गाय के गौवंश के ही कंडे हो, देसी गाय का ही घी हो, और जो अक्षत है वो भी अगर हमारे नेचुरल हो, देसी तरीके से उगाए हो बिना केमिकल के, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और हाँ. हमारे मंत्र जो हमें सुबह और शाम का मंत्र है, सुबह का मंत्र सूर्य जी के लिए है और शाम का मंत्र अग्नि के लिए है, तो वो हमें बस ये 5 चीजों का ध्यान रखना है. शिवाली जी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज कम ऑन योर वीडियो एंड यू कैन. एक्चुअली मैं ना आटा कर रही हूँ तो मैं कर नहीं पाऊंगी. व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि आजकल बियर बाटा आता है गाय को खिलाने के लिए. तो हमारे यहाँ एक गौशाला है, देसी गाय रखते हैं वो, लेकिन वो बियर बाटा खिलाते हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस और नॉट. आई हैव नॉट हर्ड अबाउट व्हाट इज बियर बाटा. बेसिकली जो बियर बनाने के बाद जो वीट वो हो चुका है, सड़ चुका है, उसको सुखा के गाय के चारे में बेचा जा रहा है आजकल. तो ये मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था. हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो गौवंश है उसको हम क्या खिला रहे हैं. जनरली अगर हम अपने गौवंश की बात करें तो हम उनको जो खिलाते हैं वो भी मायने रखते हैं, क्योंकि वैसे ही दूध और वैसे ही उसके जो गोबर और वो आएगा वो वैसे ही आएगा. तो मुझे बियर बाटा के बारे में तो नहीं पता, पर मैं ये बोलूंगा कि हम गाय को जो खिला रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, उसका जो अन्न है वो शुद्ध होना चाहिए. पर अब वो हमें फिगर आउट करना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी गौशाला है जो जेन्युइन तरीके से गाय की रक्षा कर रही है, गाय की केयर कर रही है.
आई थिंक नवीन जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। बिल्कुल। सो बेसिकली आपने अभी भी एकदम सही बताया है कि जो गाय को हम जो खिलाते हैं वो अच्छा चारा हो, अच्छा हो, तभी उसके जो होगा ना, जो आएगा रिजल्ट वो भी अच्छा रहेगा। हम क्या करते हैं यहाँ बैंगलोर के अंदर, हमने एक गौशाला से टाइप किया हुआ है। जो महाराष्ट्र में एक गौशाला है, वहां से हम लोग कंडे मंगवाते हैं, वहीं से हम घी मंगवाते हैं। वो गौशाला जो है डायरेक्टली केवल अग्निहोत्र के लिए ही कंडे बनाती है, तो वो ध्यान रखते हैं पूरा। तो जितना प्योर होगा हमारा क्या नाम से गाय के कंडे और घी, उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। इसीलिए एक और है उसका, एक और तरीका क्या है कि माधव आश्रम भोपाल, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला भी है। तो वहां से भी हम लोग कंडे घी, यदि आप अरेंज नहीं कर पाते हैं तो हम वहां से भी आपको अरेंज करवा सकते हैं। हमें एकदम इंश्योर ये करना कि हम जो भी चीज इसमें डालेंगे अग्निहोत्र में, जो भी हम यूज करेंगे वो एकदम प्योर हो। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं हवन, हम कर रहे हैं प्योरिटी के लिए। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे खुद के किसान हैं और हमारी खुद की गायें हैं, और हमें पता है हम उनको अच्छा ही खिला रहे हैं, तो हम वही कंडों से हाँ बनाते हैं, और वही उनके ही बिल्कुल। जो हमारा घी है उसी घी से हम करते हैं। इवन हमारे मेरे तो चावल भी मेरे खुद के हैं घर के। करेक्ट करेक्ट। ताकि संजीत जी हेल्प करेंगे सभी की, कि है ना, गाय के कंडे, गाय का घी हम सभी को मिल सकता है आराम से इजीली। तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल आप अपना मन बनाइए कि अग्निहोत्र करना चाहिए हमें, बाकी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आपको पूरा किट मिल जाएगा, गाय के कंडे घी संजीत जी अरेंज करवा देंगे। बस हमें शुरू करना है, बस ये है। इसमें और कोई सवाल है किसी शेफाली के? जी, इसमें एक चीज और है, आप ये भी देख लीजिए कि गाय देसी है या वो हाइब्रिड है। क्योंकि कई सारी गौशालाओं में गौशाला तो है, पर गाय जो है वो देसी नहीं है, वो मिक्स की भी है। वेरी हाँ गुड। हाँ जी ज्योति जी। हाँ, मुझे पूछना था कि सुबह शाम के मंत्र चाहिए था, बाकी सब चीज तो समझ गया। हाँ मंत्र कैसे याद नहीं रहेंगे ना? करेक्ट। तो आपको मंत्र हम लोग ऑडियो भिजवा देंगे अभी संजीत जी को। आप हम हाँ लोग ऑडियो ऑडियो भेज देंगे मंत्रों का। आप हाँ। आराम से वो ऑडियो सुन लीजिए। इसके अलावा पैम्पलेट जो होता है वो भी आपको भेज देंगे, तो उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। तो ओके। संजीत जी आप आगे शेयर कर दीजिएगा सभी को। और ये पात्र और ये सब कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे, आप हमारा फॉर्म भर दीजिए, और फिर ओके। आपको इंडिविजुअली रीच आउट कर देंगे हम। और ओ उसमें क्वेश्चन कर दीजिए आपको सिर्फ पात्र चाहिए या पात्र के साथ किताबें भी चाहिए। किताबों में मंत्र हाँ। भी आएगा। और एक चीज और है कि एक ऐप भी आती है अग्निहोत्र ऐप के नाम से, ओके। वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सुबह का सनराइज सनसेट आता है, अगर आप उसमें अपनी लोकेशन डाल देते हैं। वो मैं अच्छा। आपको ऐप दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाएंगे ना आप, हाँ जी। तो वहां पे अग्निहोत्र नाम की आप टाइप करेंगे अग्निहोत्र, तो एक ऐप आती है। हाँ। ये होमा थेरेपी के नाम से है। तो अच्छा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सबको। तो अग्निहोत्र ऐप, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको डाउनलोड करना है इसको। हाँ। और इसको जब आप डाउनलोड करते हैं, तो इसमें आपको अपना लोकेशन का वो डालना है, एड्रेस। तो ओके। ये ऐप है अग्निहोत्रा बडी, ये जर्मन एसोसिएशन ऑफ होमोथेरेपी पर है। जो ये होमा अच्छा। थेरेपी है, ये अग्निहोत्र होमा की ही बात कर रहे हैं। ठीक हाँ है। हाँ। इसमें आपको बस अपनी लोकेशन डालनी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो आजकल तो सीधा लोकेशन मैप से ले लेता है, और ये रोज का आपको बताएगा कि सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है आप। हाँ। और इसमें मंत्र भी डाले हुए हैं उन्होंने, जो मंत्र ओके। आपको बोलने हैं। हाँ हाँ। तो आप इसको भी डाउनलोड करके सभी लोग यूज कर सकते हाँ। हाँ ओके सर, वही सिर्फ ये पात्र मंगा लिए और तो फिर और ये ऐप से अपने को सब चीज मिल जाती, टाइमिंग एंड करेक्ट। मंत्र। हैं। हाँ जी। इसके आगे। अलावा हाँ या नवीन। हाँ इसके जी। अलावा यदि आप चाहें तो माधव आश्रम भोपाल का एक ऐप आता है, उसमें पांचों नियम डिटेल में दिए हुए हैं। पांचों नियम जो अभी बताया है ना, हाँ वो हाँ। सब पूरा हैंडी है उसके अंदर। आप वो चाहे वो हाँ। भी यूज कर सकते हैं, वो आप हाँ डाउनलोड जी। कर सकते हैं इजीली। तो उसके हाँ थ्रू भी पांच, जैसे टाइमिंग हो गया, कंडे हो गए, सारे नियम सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैं विद द साइंस। तो वो आप वो हाँ। भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। मैं पर्ल को फिर से ओके, बोलूंगा थैंक यू। कि आप वो फॉर्म थैंक शेयर यू कर सो मच। दीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज डू फिल द फॉर्म। ओके सर, ओके। ये फॉर्म बहुत फिर अच्छी, पर्ल बहुत शेयर। अच्छी चीज बताई आपने। हाँ जी। अभी नवरात्रि में वैसे भी हवन चालू है। तो ये अब आप लेकिन संकल्प टाइमिंग का लीजिए। नहीं रहता, देखो अभी टाइमिंग का इम्पोर्टेंस पता चला। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। ये सिर्फ हाँ ये जी। डेली का। अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं हम, ये अग्निहोत्र के हवन की हाँ ही बात कर रहे हैं, बस हाँ टाइमिंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ ओके डेली सर। करने वाला यज्ञ है ये, आपको डेली करना चाहिए। तो हाँ ये जी। नियमित करने वाला हवन है। तो हाँ हमें हमें लाइफ में जितना टाइम मिले, जितनी बार हमें मौका मिले, हमें करना चाहिए।
तो ये रेगुलर ओके रूटीन कि हम लोग लास्ट 40 ईयर से कर रहे हैं, 40 साल से हमारे घर अच्छा में हवन हाँ हो रहा ही है। ओके सर ओके थैंक यू सो मच थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए, अगर हमारे पास अभी है थोड़ा सा समय। आई थिंक वी कैन एंड द सेशन नाउ। नवीन जी, शालिनी जी, Yeah, here only. thank you for the wonderful session. And इतने short notice में आप लोग आ गए, and I think we have been planning this from last year, but हो नहीं पा रहा था. And thank you for the detailed explanation around Agnihotra, and we look forward for learning more around it. Thank you everyone for joining us. थैंक यू। थैंक यू।